Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पे मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है और इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स होता है, एसपी और क्या कहते हैं उसको, ओसीएम, ओके, वो पढ़ाने की, और वो सिंपल शब्दों में आपको पढ़ा सकूँ। अभी तो कोशिश ये चालू है कि जर्नल का जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ा सकूँ। लास्ट टाइम व्हाट इज़ अ जर्नल? इट इज़ द वर्ड डे, DAY, एक दिन, और उसको प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहते हैं कि अ बिजनेसमैन जब भी कुछ लेन देन करता है सबसे पहले जाकर कहाँ पे लिखता है? जर्नल। बाद में लेजर, लेजर आने के लिए थोड़ा समय है। दिस इज अ लेजर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। राइट नाउ आपको क्या रिफ्रेश करना है कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल क्या है, एंड उसके रूल्स क्या क्या थे। पर्सनल हैड अ रूल, real had a rule, and nominal had a rule, and in every rule there was a debit and a credit. Don't forget it, keep it in mind. Sir, how long? Keep it in mind. How long? Forever. Expire होना नहीं चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सर वो 10 साल बाद, सर 20 साल बाद शादी वादी हो जाएगी, तो भी याद करो, तेरे लाइफ के लिए याद कर, वो 10 साल हो या 50 साल हो, तेरी लाइफ के लिए। बिकॉज वेन एवर यू डू अकाउंटेंसी, ये रूल्स के ऊपर ये सब्जेक्ट को बनाया गया है। आज का जो हमारा सल्यूशन है वो जर्नल का है, और जर्नल इस तरह दिखता है। इसके अंदर एंट्री है, इसके अंदर नरेशन है। तो जब भी हम सॉल्व करें जो ये प्रॉब्लम है, अगेन पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड है, एवरीथिंग टाइटल में है। It says journalize, मतलब जर्नल बनाओ, the following transactions, लेन देन, in the books of आनंद जनरल मर्चेंट्स। तो दुकान का नाम है आनंद जनरल मर्चेंट्स, तो वो ऊपर आपको लिखना है। मे बी आनंद ओनर रहेगा नॉर्मली ना, इसके लिए नाम वैसे दिया है आनंद जनरल मर्चेंट्स। और जो उन्होंने मंथ एंड ईयर दिया है वो है 2019, अप्रैल 1 से गाड़ी स्टार्ट होगी, तो उतना लिखा। आगे क्या लिखो? डेबिट क्रेडिट। कौन सा, वो तो पढ़ूंगा तो समझेंगे, ओके। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेंगे अकाउंटेंट्स। मिस्टर आनंद
मालिक, मालिक का नाम कभी नहीं लेते, या तो कैपिटल या तो ड्रॉइंग्स। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हमने बहुत बार किया है। कैश आया, हम दुकान, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ओनर इज द गिवर, कैपिटल। सो कैश इज डेबिट, ओनर, कैपिटल इज क्रेडिट। हाउ डू यू राइट दैट? देख वो ना जर्नल के स्टाइल में लिखना है, और ये स्टाइल है, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 to capital account 60,000. This is the style of writing an entry. This is a simple entry. एंट्री के नीचे नरेशन लिखना पड़ता है क्योंकि कुछ लोगों को वो समझ ही नहीं आता। उनका कसूर नहीं है क्योंकि वो कॉमर्स के बैकग्राउंड से, उन्होंने कभी अकाउंट्स किया नहीं, सब लोग नहीं करते ना। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, सुपर। अब क्या करें, वो हो गया, कहानी आगे बढ़ाओ। ओके, आगे बढ़ाते हैं। 5 तारीख, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स खरीदा और पैसे दिए। परचेस नॉमिनल है, खर्चा, आप कुछ भी खरीदो आपका खर्चा है। डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल एनालिसिस दिमाग में, और यू हैव टू दिमाग में कम टू अ कंक्लूजन, ये डेबिट वो क्रेडिट, और फिर लिखो। क्योंकि आपने अगर कोई चीज सोची है वो सबूत नहीं है, लिखा है वो सबूत है। मार्क्स जो लिखा है उसके लिए मिलेगा ना। ऑन 5th अप्रैल परचेस अकाउंट डेबिट नॉमिनल, और पैसा गया। बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, परचेस किया और पैसा दिया। परचेस का मतलब गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर दुकानदार हर दिन खरीदता है, एवरी डे वो उसको खरीदता है। कोई अगर आइसक्रीम बनाता है, मिल्क की तो जरूरत, दूध की जरूरत पड़ेगी ना। अभी वो कोई बासी दूध थोड़ी खरीद सकता है, उसको फ्रेश दूध हर दिन खरीदना पड़ेगा। कोई अगर सैंडविच बनाता है तो बटाटा, कांदा, जो भी है, ओके, मिर्ची, हर दिन वो खरीदेगा क्योंकि उसको फ्रेश चाहिए। तो परचेज खर्चा होता है। नेक्स्ट 7th, सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश। सुरेश हमारे सामने है, ऐसा सोचो, हमारे सामने हमने बोला सुरेश ये माल रख, तो सेल्स, सेल्स नॉमिनल है, इनकम। सुरेश सामने खड़ा है इन फ्रंट ऑफिस, तो वो क्या है, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। मैं डायग्राम आज नहीं बना रहा क्योंकि आप हमेशा दूध पीता बच्चा नहीं रह सकते। यू कैन बी अ स्मॉल चाइल्ड ऑलवेज, दैट यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट योर मम्मा पापा विल होल्ड योर हैंड। कभी ना कभी तो बड़े बन जाओगे। इनफैक्ट 9-10 साल का बनने के बाद बच्चे खुद कहते हैं, नहीं मैं जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ ना, मैं चल के जाता हूँ, मैं साइकिल पे जाता हूँ। नहीं नहीं, आपको मेरे को ऐसे हाथ थामने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसी तरह मैं ये सोच रहा हूँ कि आप भी बड़े हो गए हो। ओके, तो सुरेश रिसीवर है और सेल्स क्या है, इनकम्स एंड गेन्स। तो द राइटिंग इज ऑन 7th अप्रैल, सुरेश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश। सिंपल एंट्री, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, सिंपल एंट्री, नो मारा मारी। नेक्स्ट, थोड़ी आपकी कल्पना, इमेजिनेशन, ओके, थोड़ा अच्छा होना चाहिए। 10 तारीख, परचेस्ड फर्नीचर, प्लीज याद रखना। सर परचेस, नहीं नहीं नहीं, फर्नीचर खरीदा। सो क्या हो गया, फर्नीचर हर दिन नहीं खरीदते। आपके घर में सोफा फर्नीचर है, डाइनिंग टेबल फर्नीचर है, कबर्ड फर्नीचर है, कैबिनेट फर्नीचर है, हर दिन खरीदते हो? नहीं नहीं सर, वो तो 10 साल से है। बराबर, 10 साल से है। बट किचन में कांदा, बटाटा, ग्रीन, हरा मसाला, ओके, अंडे, पल्सेस, दाल, ओके, अगर नॉनवेज खाते हो तो चिकन, ये तो हर दिन खरीदना है ना। तो आई रिपीट, उसको गुड्स कहते हैं, हर दिन खरीदना है। मम्मी हर दिन ताज़ा ताज़ा लेके आती है, पापा लेके आते हैं, ओके। सो जो आप एक बार खरीदते हो, गाड़ी, मोटर कार,
तो वो गुड्स नहीं होता, बराबर। फर्नीचर गुड्स नहीं होता, रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल गुड्स नहीं होता। गुड्स अगर है तो उसको परचेस लिखो, नॉमिनल। बाकी अगर कुछ खरीदा जो एक बार होता है, एक बार, बार बार नहीं होता, बराबर। जैसे नॉर्मली शादी एक बार होता है भाई, नॉर्मली बोल रहा हूँ, बाकी आजकल तो लिस्ट लग जाती है 2 बार, 10 बार, 5 बार, ओके, हाँ, नॉर्मली। तो बिजनेस में भी ये जो फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ये एक ही बार खरीदते हो, तो यू हैव टू राइट फर्नीचर रियल अकाउंट। परचेस मत लिखना, सर परचेस दिया है, अरे वो फर्नीचर खरीदा इसके लिए परचेस बोला ना उन्होंने, क्लैरिफाई करना था कि क्या किया फर्नीचर का। फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन। सर जीएसटी का क्या, लास्ट टाइम जीएसटी था, वो उन्होंने बोला नहीं, तो फिर मेरे को पता नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। जीएसटी बोलेंगे तो लिखेंगे। अच्छा, किससे खरीदा, गोविंद से, क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब पैसे नहीं दिए, तो मैं भी 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद में देंगे। गोविंद गिवर है, गिवर। जब भी उधारी पे कोई भी चीज हो, उधारी पे मतलब क्या है, पैसे बाद में, नाम लिखना बहुत जरूरी है। पैसे बाद में किसको, पैसे लेने हैं किससे, नाम लिखना बहुत जरूरी है, बराबर। और अगर आपने पैसे दे दिए तो नाम मिटा दो। तेरा नाम से मैं क्या करूँ यार, मैंने तो पैसे दे दिए, मैंने तो पैसे ले लिए। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्नीचर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। विदाउट द डायग्राम आई वांट यू टू इमेजिन ऑन 10th April, furniture account debit to credit, Govind account, being furniture purchased from Govind on credit, उधारी, पैसे बाद में। This is how you write the simple journal entry. Next, 15 तारीख says paid for rent 3000, भाड़ा दिया। जो भी भाड़े के घर में रहता है भाड़ा देना पड़ता है, तो उनकी जेब से पैसे जाते हैं, पैसे। रेंट खर्चा है किसके लिए, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। कोई 3000 देता है, कोई 30,000 देता है, कोई मतलब उससे ज्यादा देता है, जितने बड़े घर में रहता है उतना ज्यादा भाड़ा। रेंट खर्चा है, नॉमिनल। सैलरी खर्चा है, वेजेस खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, ट्रैवल खर्चा है, ट्रांसपोर्ट खर्चा है, खर्चा नॉमिनल। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पैसा दिया, नहीं क्या बोला, एंड पेड बाय डेबिट कार्ड, क्योंकि जैसे ही पेंडेमिक आया सम टाइम बैक, लोग घबरा गए, पीपल वर अ बिट स्कैर्ड, अ लॉट स्कैर्ड, कि इसको टच करेंगे, उसको टच करेंगे, तो ना इलेक्ट्रॉनिक चीज चालू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चीज, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। सो डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, अच्छा आपने जाके कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट करा दी। लैंडलॉर्ड जो था ना, उसने डेबिट कार्ड का मशीन रखा, जैसे मैं गया भाड़ा देने के लिए, बोलता है सर टच मी नॉट, छूना नहीं मुझे, ये लो, क्या ये डेबिट कार्ड की मशीन है, चलो स्वाइप करो, तो तुम्हारे अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अकाउंट से का मतलब क्या है, बैंक अकाउंट से, बिकॉज अ डेबिट कार्ड इज कनेक्टेड टू अ बैंक, अ क्रेडिट कार्ड इज कनेक्टेड टू अ बैंक, अ चेक इज कनेक्टेड टू अ बैंक, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कनेक्टेड टू बैंक, कनेक्टेड टू बैंक, कनेक्टेड टू बैंक। तो भैया बैंक से ही पैसे आते जाते हैं। तो जैसे ही आपने रेंट भरा, रेंट नॉमिनल डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बट पैसे कहाँ से गए, जेब से गए, नहीं जेब से नहीं गए, बैंक से गए। क्यों, वो डेबिट कार्ड स्वाइप मारा ना, तो वो डेबिट कार्ड जो है ना वो कनेक्टेड है बैंक से, तो पैसे बैंक से जाते हैं। बैंक इज क्रेडिट द गिवर, नॉट नॉमिनल, पर्सनल, क्रेडिट द गिवर। So the answer is the following: rent account debit to bank account. आप रेंट अगर कैश पे दो तो लिखो कैश, बट इफ यू डोंट गिव इट इन कैश, नॉन कैश तरीका, तो वो नॉर्मली बैंक से रहेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बेरर चेक, क्रॉस चेक, जी पे, फोन पे, पेटीएम, एवरीथिंग, यूपीआई, बैंक, ओके। NEFT करके भी आता है, RTGS भी आता है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज प्रोसीजर्स आर कनेक्टेड टू द बैंक।
सिंपल बैंक लिख देना, बैंक डेबिट कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड, बैंक एनईएफटी, बैंक आरटीजीएस, बैंक गूगल पे, बैंक यूपीआई, बैंक। अरे यार बैंक के कितने वेराइटी है। हाँ ओके, बिकॉज आजकल सारी चीज़ें बैंक से ही होती है, नाम अलग अलग रहता है, काम बैंक करता है। नेक्स्ट 21st, परचेस्ड गुड्स, गुड्स नॉट फर्नीचर, नॉट कंप्यूटर, नॉट लैपटॉप, गुड्स, उसको परचेज बोलते हैं। नॉमिनल डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। अच्छा, मतलब पैसे नहीं दिए तो उर्मिला इज द गिवर, उर्मिला is the giver. Right above me is the answer. Purchase account debit to Urmila account. Being goods purchased from Urmila. उधारी पे on credit. Simple, nothing complicated. थोड़ा complicated रहेगा क्योंकि कुछ नया है तो मैं थोड़ा और भाषण दे दूंगा, अदरवाइज इतने से अपना काम चल गया। 27. Paid for transport 1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। पेड का मतलब क्या? अरे पैसे। अच्छा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं, पैसा दिया। ओके। ट्रांसपोर्ट खर्चा होता है, रिक्शा का ट्रांसपोर्ट, ओला का ट्रांसपोर्ट, उबर का ट्रांसपोर्ट, रेलवे का ट्रांसपोर्ट, बस का ट्रांसपोर्ट, लॉरी का ट्रांसपोर्ट, रेलवे का ट्रांसपोर्ट, सारे एयर का ट्रांसपोर्ट, खर्चा। डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने पैसे दिए, सामने है यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके काउंटर पे उन्होंने बोला ये ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, हम आपका टेम्पो यूज़ कर रहे हैं, हम आपका बस यूज़ कर रहे हैं, हम आपका लॉरी यूज़ कर रहे हैं, ओके, ये पैसे रखो। नाउ अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, इवन दो हम बातचीत नहीं कर रहे, क्या हमको यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट जो एक कंपनी का नाम है लिखना है? यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट क्यों लिखना है? नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना है? अरे पैसे दे दिए ना आपने, काउंटर पे पैसे दे दिए, रख पैसे, तो उनका नाम आपको याद रखने की, व्हेन डू यू कीप अ रिमाइंडर? मेनी अ टाइम्स माय वाइफ कम्स एंड टेल्स मी, बच्चों का ये बुक लाना है, कल हमारी बेटी को सैंडविच बनाने का है, स्कूल के लिए प्रोजेक्ट है, तो आज जाके आप बटाटा और जो भाजी है और पाव वो सब लेके आओ। अब कभी कभी मैं बिज़ी रहता हूँ, काफ़ी बार बिज़ी रहता हूँ, फिर लेक्चर्स के बाद में मुझे याद नहीं रहता, तो जैसे ही मेरे को कोई कुछ कहा कहता है ये करो वो करो, फट से एक पेपर पे लिख देता हूँ। आई टेक अ पेपर, ओके, और ऐसे कुछ मैं पेपर पे पेंसिल लेके लिख देता हूँ। क्यों? मैं बोलूँगा अरे यार वो बाद में भूल जाता हूँ कभी कभी, तो मैं वो देखता हूँ बाद में, अरे ये काम करना था, वो काम करना था, आई रिपीट। सो इफ़ यू हैव टू राइट, व्हेन यू राइट समथिंग यू वांट टू रिमेंबर इट, याद रखना है। बट यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट का पैसा आपने दे दिया, मामला खत्म, तो क्यों याद रखो, क्यों लिखो यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, UNI? अरे क्यों लिखो? पैसे दे दिए ना, उनके साथ कहानी खत्म, कहानी खत्म, कोई पार्ट 2 नहीं है, बाहुबली दी एंडिंग, पार्ट 2 नहीं। आप लिखो ट्रांसपोर्ट, नॉमिनल। नॉमिनल कभी मत भूलना, व्हेन यू पे एन एक्सपेंस, नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलना अपनी जिंदगी में। प्रॉब्लम में भूलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मार्क्स जाएंगे। रेंट लिख, इलेक्ट्रिसिटी लिख, सैलरी लिख, वेजेस लिख, इंटरेस्ट लिख, कमीशन लिख, क्या ये सब? ये नॉमिनल खर्चा है, खर्चा हर दुकान में ये होते रहता है। सो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और पेड का मतलब पैसा दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पेड का मतलब पैसा दिया। सो ऑन 27 अप्रैल ट्रांसपोर्ट या तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, आपकी मर्जी, दोनों सेम है। नरेशन इज बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंटली ये काफ़ी बार आएगा। सर नाम कब आप लिखते हो? आप कभी नाम नहीं लिखते। सिंपल सी बात है, नाम लिखता हूँ तो मुझे याद रखना है, नाम अगर नहीं लिखता तो हमारा कहानी उनके साथ ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा जब एग्जाम्पल्स करेंगे ना एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में, तो वो जो डाउट है ना, शक का कीड़ा, डाउट सब में होता है क्योंकि जस्ट बिगिनिंग है ना, इसके लिए सर ये कैसे वो कैसे, अरे टेंशन ना लो, जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा और प्रैक्टिस तो हमको करने दो, क्योंकि शुरुआत में पूरी कहानी, सारे वेराइटीज़ हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ओके, जितना है क्वेश्चन में मैं उतना ही आपको समझा सकता हूँ। ओके, इसके बाद
हम ऑलमोस्ट एंड में हैं, 30th। पेड टू उर्मिला। ऐसा है, मेरे सामने उर्मिला आई, मैं मेरे दुकान में बैठा था, मेरे बगल में मेरी दोस्त शर्मिला वो बैठी थी, बात करी थी मेरे से, बराबर। ये उर्मिला आई और मैं उर्मिला को नहीं जानता। मैं बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, चाय और कुछ नहीं, चाय पी रहा हूँ और चाय पिला रहा हूँ शर्मिला को। वो बिल्कुल शर्म नहीं करती, बिंदास उसने चाय पूछा, चल पी ले। मैं बगल में शर्मिला, उर्मिला आई चिल्लाते हुए, मेरा पैसा मेरे को दो। मैं थोड़ा घबरा गया, मैंने बोला यार मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों पैसे दूँ? तो आई रिपीट, बाद में 2 मिनट बाद मेरे को पता चला, अच्छा वो मुझे नहीं चिल्ला रही, वो शर्मिला को चिल्ला रही है। उसका और शर्मिला का रिश्ता है, हम इस कहानी में नहीं है। हाँ, तो कुछ ऐसा है कि भाई शर्मिला ने उर्मिला से कुछ माल खरीदा था, कुछ काम करवाया था, कितने का? 20,000 का। और ये शर्मिला जो है ना, ओके, चंचल दिमाग, भूल गई, 20,000 भूल गई। तो उर्मिला भड़क गई, वो आई, ओके। अभी शर्मिला भी ना, अभी उनको बहुत शर्म आ रही है क्योंकि थोड़ा ना इज्जत का कचरा हो गया। तो शर्मिला ने मेरे सामने हाथ जोड़े, मदद कर लो। तो अपनी दोस्त है यार, अपनी दोस्त है, चाय पिलाया ना मैंने उसको, दोस्त है, फ्रेंड, अरे चलो मदद कर देता हूँ, ओके। हम बड़े दिलदार हैं, मदद कर लिया। मैंने 20,000 निकाला और मैंने किसको? उर्मिला को दिया, मैडम रखो, जाओ जाओ, भड़को मत, जाओ। उसको पैसा मिला, वो चली गई। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैंने पैसे दिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैंने पैसे दिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट क्या मुझे पैसे देने थे उर्मिला को? नो, मेरा कोई कहानी नहीं है उर्मिला के साथ, मैंने तो शर्मिला का हेल्प किया। सो प्लीज नोट, व्हेन आई पे दिस मनी, हु गेट्स द बेनिफिट? फायदा किसको मिलता है? शर्मिला को। मुझको कोई फायदा नहीं मिलता, शर्मिला को फायदा मिला। सो डोंट राइट, जब भी ये बिहाफ आए, आपको ये वर्ड दिख रहा है बिहाफ, बी वेरी केयरफुल। बिहाफ का मतलब क्या है? दूसरे के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। तो मैं शर्मिला को बोलूँगा, तेरे लिए मैंने पैसे दिए, 20,000 दिए। हाँ, तो आई रिपीट, ये तेरे लिए कैसे सॉल्व करें? पैसा गया, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेफिनेट। बट उर्मिला का नाम मत लिखना। क्यों? उर्मिला के साथ अपनी कहानी कभी थी ही नहीं। अपनी कहानी शर्मिला के साथ है, अपना रिश्ता दोस्ती शर्मिला के साथ है। हमको ये वसूली शर्मिला से करनी है, बिकॉज उर्मिला डज नॉट नो अस, वी डोंट नो उर्मिला। हमने बस हमारी फ्रेंड की हेल्प की। बट ये बिजनेस में लेन देन तो करना पड़ेगा, तो मेरे को बोलना पड़ेगा। मैं शर्मिला को, शर्मिला तेरा नाम लिख रहा हूं मैं डेबिट में, क्योंकि तू रिसीवर है। उसको भले ही पैसे दिए, फायदा तुझे मिला, ओके। तेरा नाम लिख रहा हूं मैं, तू मुझे पैसे फ्यूचर में देगी। सो द आंसर, द लास्ट आंसर ऑफ 30th April इज नॉट उर्मिला डेबिट। बिहाफ का चक्कर बहुत टेढ़ा चक्कर रहता है, टेढ़ा टेढ़ा, ध्यान रखना। शर्मिला डेबिट टू कैश 20,000, शर्मिला डेबिट टू कैश 20,000। कैश गया डेफिनेटली, बट हमने उर्मिला को नहीं, हमको शर्मिला का हेल्प करना था, हमारी दोस्त वो है, इसके लिए। ओके, दिस इज ऑल द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एट द वेरी एंड, ठीक मेरे सिर के इस तरफ आपको ग्रैंड टोटल लिखना है, जो डेबिट और क्रेडिट का पूरा एडिशन रहेगा, विच इज़ 2,24,000 फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगेन आई रिपीट, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, वो बनाते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, समझदारी बेटर बनती है, बट आप बच्चे ही रह जाओगे। आपके दूध के दांत अकाउंटेंसी की कभी नहीं गिरेगे। यू कांट ऑलवेज बी वॉट थॉट इन अ मैनर। जब बहुत छोटे रहते हैं ना, बहुत छोटे, मेरी वाइफ जो है वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है, जो अभी केजी में गए हैं, प्री स्कूल, तो उनका हाथ पकड़ना पड़ता है। रेड लाइन, ब्लू लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन बोलना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। बट अगर वही 3rd 4th स्टैंडर्ड के लिए किया जाए हाथ पकड़ के, अरे नहीं अभी बड़े हो गए हो, पेंसिल पकड़ना है आपको, आपको लिखना है। अरे हिंदी लिखनी है, मराठी लिखनी है, इंग्लिश तो लिखना ही लिखना है।
सो आई रिपीट, आई कांट होल्ड योर हैंड फॉर एवर। तो इसके लिए मैंने डायग्राम हटा दिया। अब मैं आपको थोड़ा बड़ा ट्रीट कर रहा हूँ। ये भैया बड़े हो चुके हो, अभी जो मैं बोलूँगा वो समझो, ना कि जो मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं जी। आशा करता हूँ कि आपका जो ज्ञान का स्तर है अकाउंटेंसी के अंदर और जर्नल के अंदर बढ़ गया है जी। बढ़ गया रहेगा तो लाइक ज़रूर कर लेना जी। ओके, कमेंट बॉक्स का जो डिब्बा है वो खुला है, अगर कोई भी डाउट रहेगा उसके अंदर आप पूछ सकते हो। कोई सजेशन है हमारे लिए, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, आप हमको ज़रूर बता दीजिए। एरर होता रहता है, हम उस एरर को सुधार देंगे अगर आप वो एरर हमें पॉइंट आउट कर सको। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक हम अगली बार ना मिले अपना ख्याल ज़रूर रखें। ओके, तो पुराने हो शेयरिंग करते रहे, नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाएं ताकि यूट्यूब के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।